Good evening, everyone. And last session we had learned a few things. Today again we will learn few more things. I'm not still able to find out that people are really ready for the module. Not everyone, but there are people who are still unfortunately struggling with MySQL कैसे चालू करना है, या फिर कैसे वर्क करना है, या फिर कैसे कमांड कहाँ पर देना है, MySQL का कमांड कहाँ पर देना है, और आपका विंडोज का कमांड कहाँ पर देना है. लोग इसमें अभी भी गड़बड़ कर रहे हैं. I request you people ensure that your database installation is ready. Correct? Your database installation is ready. It is really recommended. Correct? अगर आप लोग ऐसे करोगे तो फिर मुश्किल है. And see to it that you take your lab seriously and also read my documents very seriously. Ajinkya, Ajinkya, this is like answer to your question. Where I am supposed to import the database. ये मैंने कल कौन से database में मैं था? आपको याद होगा. Yesterday I was there into the DAGDB. करेक्ट. और तब मैंने आपको ये बताया भी था कि इट इज रिटन यस्टरडेज डॉक्यूमेंटेशन. कल जो मैंने क्लासरूम में नोट्स टाइप किए थे, day2.md classwork db.sql is to be taken in DAGDB database. It was very clearly written. Please do the assignment not during classroom but during the lab time. It will be really great for you. अगर आपको लैब में असाइनमेंट करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो लेट मी नो. वी विल डेफिनेटली वर्क आउट समथिंग ऑन दैट. राइट. लेक्चर में आने के बाद में अगर आप लोग मुझको असाइनमेंट के क्वेश्चन पूछोगे, देयर विल बी मेजॉरिटी ऑफ नॉट माय टाइम, बाकी सारे क्लास का टाइम इन्वेस्ट होता है, प्रॉब्ली वेस्ट होता है. सर वो हम लोगों ने नहीं किया. आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स, प्रॉब्ली 180 स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट. नाउ 20 स्टूडेंट्स के लिए आई कैन नॉट रियली होल्ड बैक द अदर स्टूडेंट्स. I request ensure that you complete your lab assignment work during lab time, and if you are getting any problems, lab faculties are available. If not getting solved, please contact me on my WhatsApp number or onto the Zoom. If I'm available, we can even discuss at that time only. Right? Okay. I'm just going ahead and talking about today's concept. तो सर आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्या पढ़ने वाले हैं ये बाद में. पहले हम लोग कहाँ पर है, पहले वो देखते हैं. पहले हम लोग कहाँ पर है. इंश्योर दैट लॉग इन विथ EDAC login, a login with EDAC login into DAG database. DAG database. And how we can do that? How we can do that? We can do it in a very simple way. MySQL -u EDAC -p. हम लोग डायरेक्टली यहीं पर पासवर्ड दे सकते हैं और हम लोग यहाँ पर DAGDB कह सकते हैं. So I'm just taking this. Control C, Control C, Control V. Yes, done. And it is there. Why don't I take it one more step ahead just to ensure am I in the right database? Select user, select database. So which user and which database I'm expecting output, that EDAC user and and DAGDB database. This is expected output. You please first check are you into the right place. So जो output मेरा आ रहा है वही output आपका भी आ रहा है क्या, पहले चेक कर लो. And not only that, also verify that are all your tables are imported there. All your tables are imported there. ये जो कल के आपके जो 7 6 7 टेबल्स हम लोगों ने क्रिएट किए थे, एक स्टूडेंट्स का टेबल और जो हम लोगों ने क्लास वर्क का डेटा जो हम लोगों ने इंपोर्ट किया था, सो ये सब कुछ वर्क हो रहा है क्या. प्लीज वेरीफाई दिस. आई एम वेटिंग फॉर यू. इंश्योर दैट थिंग्स आर करेक्ट, सो दैट बाद में मैं अगले क्वेरीज लिखूंगा. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर वो मैं रूट के लॉगिन में था, सर मैं HR के डेटाबेस में था, सर मैं और कहीं पर था, सर मैं अपने घर में था. सो ऐसे प्लीज मत करो. इंश्योर दैट यू आर इनटू द राइट डेटाबेस, you are with the right user logged in, so that the things are like synced up easily. Very few people have responded. Others, only 10 people are responded. बाकी लोग, are you onto the right database and with the right user as expected. ऑलरेडी मैंने कोड शेयरिंग ऑन किया हुआ है. अगर आपका टाइपिंग अच्छा नहीं है तो कॉपी पेस्ट करो कमांड. आई रियली डोंट माइंड इट. 50 students have responded. We have got a class of 200 students.
वन रो ओनली, वन रो ओनली का मतलब क्या है? यू आर गेटिंग ओनली स्टूडेंट, इसका मतलब सौरभ आपने सोर्स कमांड नहीं दिया है। कल का वो डे टू का फाइल चेक करो और उसके अंदर सोर्स कमांड जो था, कमांड था, वो सोर्स कमांड दे दो, गिव द अप्रोप्रिएट पाथ एंड इंपोर्ट ऑल अदर टेबल्स एज वेल। वैसे आज हमको नहीं लगेंगे, लास्ट के एक आध डेमो में मैं आपको थोड़ा सा सोर्स कमांड ईएमपी टेबल के बारे में दिखाऊंगा। नियर बाय 94 स्टूडेंट्स हैव रिस्पॉन्डेड। यस, आई एम वेटिंग, गो अहेड, डू इट। एंड फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर इंश्योर दैट आप लोग, आपका मशीन चालू है, आपका डेटाबेस चल रहा है, आपने जो होमवर्क बोला गया था वो आपने पूरा किया हुआ है। बिफोर वी स्टार्ट विद द लेक्चर एट 6 o'clock यू आर रेडी। आपको सिर्फ एक ही टेबल दिख रहा है, इसका मतलब ये है 100 स्टूडेंट्स हैव रिस्पॉन्डेड, गुड, स्टिल 100 आर लेफ्ट आई गेस। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, अभी भी अगर आपको एक ही टेबल दिख रहा है, इसका मतलब आपने कल का स्टेप नहीं किया है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्टेप, ये वाला स्टेप आपने कल का नहीं किया है। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। लुक लाइक यू पीपल आर नॉट टेकिंग योर होमवर्क सीरियसली। हंड्रेड एंड ट्वेंटी, 130 स्टूडेंट्स हैव रिस्पॉन्डेड। आई हैव एडेड अ क्लासवर्क डेटाबेस। तुमने क्लासवर्क नाम का नया डेटाबेस क्रिएट कर लिया क्या? दैट वाज नॉट रियली एक्सपेक्टेड, एनीवे दैट इज अप टू यू। आई सजेस्ट दैट उसको डैगडीबी में भी इंपोर्ट कर लेना। Creating tables and inserting data into the database via root login versus EDAG login, is there any difference? There is no difference. There is no difference. उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. As long as database creation is concerned and as far as user creation is concerned, that must be done with the root login. Database creation and user creation must be done with the root login. Rest everything, मतलब grant command and all that. Actual table creation and importing a data can be done from any login. That is not a problem, provided the permissions are given. Ajinkya is saying that done homework and still also use source. नहीं, तो आपने कहीं पर गलत जगह पे डेटा इंपोर्ट कर लिया अजिंक्य। फिर से एक बार करो एंड डू इट हेयर, डू इट अगेन एंड डू इट हेयर इनटू द करंट डेटाबेस। क्योंकि आप लोगों ने जहां पर सोर्स किया है वो उस डेटाबेस के अंदर वो इंपोर्ट हो जाता है। डोंट फॉरगेट दैट। आपने नया डेटाबेस क्रिएट कर लिया, एग्जैक्टली आई एम सेइंग द सेम। ओनली वन स्टूडेंट टेबल, अगर आपको ओनली वन स्टूडेंट टेबल दिख रहा है, इसका मतलब आपने इंपोर्ट सही डेटाबेस के अंदर नहीं किया है, आपने किसी दूसरे डेटाबेस के अंदर वो क्लासवर्क डीबी को इंपोर्ट किया है। आई सेड, आपको मैंने कल के स्टेप्स बताए थे, अगर आप लोग भूल गए होंगे तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। मैंने आपको कल बोला था, पहले डेटाबेस क्रिएट कर लो, उसको परमिशन दे लो, उसके बाद में यूज करके उसके अंदर स्विच हो जाओ और उसके बाद में उसको सोर्स कमांड दे दो। दिस इज समथिंग दैट आई टोल्ड यू। अगर आपने ये यूज कमांड अगर भूल गए तो आपके सारे टेबल्स इंपोर्ट हो जाएगी किसी दूसरे डेटाबेस के अंदर जो भी अभी करंटली एक्टिवेटेड होगा। करेक्ट? सो आई एम सेइंग दैट इंश्योर दैट यू आर ऑन दिस डेटाबेस एंड ट्राई टू गिव द सोर्स कमांड वंस अगेन। ये मैंने कल पढ़ाया था day02.md के अंदर। क्या चल रहा है? गुड। इज इट ओके टू क्रिएट न्यू डेटाबेस? डोंट क्रिएट न्यू डेटाबेस, कोई जरूरत नहीं है। इज दिस एनी कमांड टू रीचेक द प्रिविलेजेस granted to a user just to ensure? yes, there are commands are there, लेकिन क्यों टेंशन ले रहे हो अभी के लिए? सो शो ग्रांट्स शुड गिव यू द ग्रांट्स फॉर द करंट यूजर। ये आपको दिखा रहा है कि अपने करंट यूजर को कौन कौन से परमिशन दिए हैं। जब आप लोग लिखते हो यूसेज परमिशन का मतलब होता है देर आर नो परमिशंस। किसने पूछा क्वेश्चन? सम्यक। अब जिस यूजर के लॉगिन से आप लोग करते हो उस यूजर के परमिशन दिखाए जाते हैं। if you are looking for certain particular user permissions, then you can also make it something like this: show grants for, and then
edac@localhost। मैं फिर से बता रहा हूँ, परमिशन का टॉपिक जो है हम लोग अलग से पढ़ने वाले हैं। Create different databases, HR, Northwind and Sales. That is good, Abhishek. Is there any default database? If we don't use db command, at that time Vishal it gives error. अगर आपने कोई डेटाबेस सिलेक्ट नहीं किया है तो वो एरर देता है। विदाउट सिलेक्टिंग इन डेटाबेस यू कैन नॉट क्रिएट द टेबल, यू कैन नॉट इंपोर्ट द डेटा, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आपने या तो यूज कमांड देना चाहिए या फिर विशाल आपने कमांड लाइन के ऊपर लिखना चाहिए, दोनों में से कुछ तो एक। हाँ भूषण, दैट इज फाइन, यू कैन ड्रॉप द डेटाबेस लेटर, क्लास ऑफ डेटाबेस आप बाद में डिलीट कर सकते हो। कैन नॉर्मल यूजर ड्रॉप द डेटाबेस और टेबल? नहीं नेहा, मैंने भी आपको बताया, normal user cannot create the database, cannot create the user, cannot drop that। उसके लिए आपको रूट लॉगिन में ही जाना पड़ेगा। यू हैव नो चॉइस, यू हैव नो चॉइस। चलो, अब मैं एज्यूम कर रहा हूं, मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया है हाउ टू क्रिएट अ टेबल, और आप सब लोग मेरे साथ इस यूजर के लॉगिन में हो। एंड कम से कम एक टेबल तो आपको दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट स्टूडेंट्स टेबल। और इस स्टूडेंट टेबल के अंदर कल हम लोगों ने जो भी रिकॉर्ड इंसर्ट किए थे, जो भी किए थे, आई डोंट रिकॉल दैट, जो भी रिकॉर्ड्स हम लोगों ने इंसर्ट किए थे, ऑल दोज रिकॉर्ड्स आर विजिबल राइट नाउ। ऑल दोज रिकॉर्ड्स आर विजिबल राइट नाउ। डोंट वरी, आपके पास रिकॉर्ड 2 या 4 कम ज्यादा हो गए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट यस, वी हैव गॉट 3 कॉलम्स, वन इज आईडी, नेम एंड मार्क्स। और ये जो कॉलम्स है, ये जो कॉलम्स है, इसके बारे में, टेबल के बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, दैट इंफॉर्मेशन कैन बी टेकन फ्रॉम द डिस्क्राइब स्टूडेंट्स। यस, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। हम लोगों ने ये भी कल देखा था, ये दिस इज, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एनीवन रिकॉल दिस? ये जो आपको दिखाता है डिस्क्राइब कमांड, आपको जो कुछ भी दिखाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? यस, इट इज कॉल्ड अ टेबल स्ट्रक्चर, और यू कैन कॉल इट एज अ मेटा डेटा ऑफ द टेबल। इसको हम लोग टेबल स्ट्रक्चर कह सकते हैं या फिर मेटा डेटा ऑफ द टेबल कह सकते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। नाउ इफ इट इज रेडी, let us go ahead and let us talk a little about the first command. The first command that we want to talk about is something called as a create table. A create table is one of the DDL command. A DDL stands for data description language command. तो ये DDL command क्या करता है? ओके, ये DDL command क्या करता है वही तो हमको देखना है। तो using DDL command we can create the table. What is basically the syntax of creating a table? Please pay attention. Syntax of a table is create table. You can specify some sort of a table name, and inside this you can specify your column 1 and you can specify the column type, right? So you have pehla column, you have given the column type. This is your second column, you have given a column type. This is like your third column, you have given a column type. So कुछ ना कुछ तो डेटा टाइप आप लोगों ने मेंशन किया है। एंड प्लीज नोट, सिंटैक्स इज टू बी फॉलोड। सिंटैक्स में अकल नहीं लगाए थे। yesterday someone was asking me, सर हमने ये कॉलम का नाम और डेटा टाइप इसको उल्टा सुल्टा किया तो? ऐसा नहीं होता है, हर एक लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होता है। सी लैंग्वेज में इंट आई सेमीकोलन लिखते हैं, यहाँ पर उल्टा लिखते हैं, पहले कॉलम का नाम लिखते हैं बाद में कॉलम का टाइप लिखते हैं। एंड यू हैव टू फॉलो। ये हम लोगों ने बहुत ही बेसिक लेवल का कंसेप्ट समझा है। व्हाट इज दैट? बेसिक लेवल का कंसेप्ट क्या है कि आप लोग जिस देश में जाओगे आपको वहां की भाषा आनी चाहिए। सो जैसा देश वैसा वेश, हम लोग कहते हैं ना, एग्जैक्टली सेम। सो वी नीड टू फॉलो दैट। अगर हम लोग सी में काम कर रहे हैं तो सी में सी के स्टाइल से प्रोग्राम लिखा करो। अगर हम लोग सिक्वल में काम कर रहे हैं तो सिक्वल किस टाइप से लिखा करो। तो वहां पर अननेसेसरी अकल लगाने वाली कोई बात नहीं है। वी हैव टू फॉलो दैट। अदर एडवांस लेवल पे, ये बेसिक लेवल पे था, एडवांस लेवल पे हम लोग ये भी देखेंगे, नॉट टुडे, 8-10 दिनों के बाद में, वी विल सी दैट हाउ वी कैन अप्लाई द कंस्ट्रेंट्स ओवर हियर। गिविंग कंस्ट्रेंट इज ऑप्शनल। राइट नाउ देयर आर नो कंस्ट्रेंट्स गिवन, नो कंस्ट्रेंट्स गिवन। कंस्ट्रेंट्स आर नथिंग बट द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द वैल्यूज। तो फिलहाल के लिए हम लोग कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं लगाने वाले हैं। तो जब कभी कंस्ट्रेंट का टॉपिक होगा तब मैं आपको बताऊंगा how the constraint is to be given. Let us continue further. Then what is next job I'm talking about? Next job, तो सर हम लोग टेबल कैसे बनाते हैं? एक कल हम लोगों ने ऑलरेडी टेबल बनाया था, आज फिर से मुझको नहीं बनाना है। सो यू ऑलरेडी सीन दैट क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, हमने क्रिएट किया था आईडी और हम लोगों ने कुछ तो नाम दिया था इंट। फिर हम लोगों ने देखा था नेम कैर 20 एंड मार्क्स डबल, इट वाज देयर। सर वो जो इंट कैर डबल है, तो आर दिस ऑल डेटा टाइप्स
आर सेम एज माय सी प्रोग्रामिंग डेटा टाइप्स? नॉट रियली। तो अगर आपको ये जानना है तो आपको पहले थोड़े से डेटा टाइप्स के बारे में पता होने चाहिए, एंड दिस इज अ प्लेस वेयर वी वांट टू बिगिन our discussion over here. So discussion is something like that. What I'm trying to tell you is that, please note, RDBMS have similar data types. I said all RDBMS have similar data types. I'm saying similar, not same data type. So I didn't understand it. I'll give you example. अभी हम लोग MySQL कर रहे हैं. So inside MySQL हम लोग int नाम का डेटा टाइप यूज करते हैं. Inside MySQL हम लोग डेसिमल नाम का डेटा टाइप यूज करते हैं. Inside MySQL हम लोग float या डबल नाम का डेटा टाइप यूज करते हैं. You go to the Oracle. As you go to the Oracle, Oracle के अंदर there is a name of a data type is there, and they are using a data type called as a number. तो यहाँ पर भी नंबर्स होते हैं, वहां पर भी नंबर्स होते हैं. सो आई एम सेइंग दैट दे आर सिमिलर बट दे आर नॉट सेम. कंसेप्चुअली कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट माई सिक्वल में अगर आप लोग नंबर लिखते हो तो एरर आता है, और ओरेकल में अगर आप लोग ये फ्लोट लिखते हो तो उसको अच्छा नहीं लगता. सो आई एम सेइंग दैट द कंसेप्चुअली दे आर सिमिलर बट सिंटैक्टिकली दे मे नॉट. As opposed to that, you go to the database like Derby database. Derby is like a Java based database, और उसके अंदर तो हम लोग अलग ही लिखते हैं. ये वहां पर हम लोग लिखते हैं it is integer. In a Derby database we try to write something called as an integer. So I'm just trying to explain you that the data types are similar for RDBMS, but they are not same. Then I'm going ahead. MySQL data types can be categorized as follows. तो हम लोग ब्रॉड लेवल पे हम लोग कैटेगरी देखते हैं, जैसे हम लोग सी में कहते हैं वी हैव गॉट लाइक प्रिमिटिव टाइप, वी हैव गॉट लाइक अ डिराइव्ड टाइप्स काइंड ऑफ स्टफ. वैसे यहाँ पर भी थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे कैटेगराइजेशन. हमारे पास न्यूमेरिक टाइप हो सकते हैं, और वो न्यूमेरिक टाइप या तो इंटीजर टाइप हो सकते हैं या फिर फ्रैक्शनल वैल्यूज हो सकते हैं. इज अलाउड. इसके अलावा हमारे पास डेट टाइम के वैल्यूज हो सकते हैं. Other than that, we can have different string values possible. We can also have some binary data to be stored, and we can also have some sort of miscellaneous type. Now these are the variety of data types given. आप लोगों को सी लैंग्वेज आता है, ये मेरा assumption है. So with that assumption, can you please tell me what is the difference between short and int? Short and int, ये दो अलग अलग डेटा टाइप जो है, इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है? यस, दोनों का साइज अलग अलग है. शॉर्ट का 2 बाइट्स है और इसका 4 बाइट है. ऑब्वियसली जैसे साइज डिफर होता है, यू अंडरस्टैंड दैट, जैसे साइज डिफर होता है, इट इज आल्सो डिफरिंग द रेंज ऑफ द वैल्यू, एंड एग्जैक्टली सेम concept is over here. Here you find that this is a data type available, tiny int, which is taking 1 byte. Small int is like your short, taking 2 bytes. Medium int is very different, 3 bytes. ऐसा कुछ सी में नहीं होता है. And this int is like say 4 byte, or we have got like a big int which is, let's say, like a long this, or you can even think of having some sort of a custom number of bits for any particular byte, any particular data type. That is also possible. तो सर फर्क क्या पड़ता है? हैव लुक एट दिस. ये टाइनी इंट 1 बाइट का है, ये आपको भी पता है, लेकिन इस 1 बाइट में 8 बिट आते हैं. 8 बिट में से 1 बिट इज फॉर द साइन, a 1 bit is for the sign, and then rest all for data. So your range will be 2 raised to 7 minus 128 to plus 127, minus 128 to plus 127. That is the range that you see. Something similar, you go for like a small int. You are going on a small int, so again you say that 2 bytes. A 2 bytes का मतलब होता है 16 bits, out of which 1 bit is for sign, so remaining 15 bits is for your data. And on the similar line, medium int, again plus or minus 2 raised to a 24 में से एक बिट गया, so it is 23 bits. आई होप 3 बाइट का मतलब 24 बिट्स आता है, ये आपको पक्का पता होगा, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स ऑफ डिप्लोमा इन एडवांस कंप्यूटिंग है. एडवांस कंप्यूटिंग के लोगों को एक बाइट में कितने बिट्स आते हैं ये अगर समझ में नहीं आता होगा तो फिर जाने दो, मैं कुछ नहीं कहता. So कहने लायक भी कुछ नहीं है. So I'm just going ahead, and then you say that for 32 4 byte, a 4 byte is nothing but 32 bits. 1 bit is for plus or minus, and remaining we have got 31 bits there. And you go ahead, you talk about like a big int plus or minus. So you have got, let's say, 63 bits, correct?
सो डिपेंडिंग ऑन जितने भी है एक बिट साइन के लिए और बचे हुए सारे बिट्स ये आपके डेटा के लिए रखे जाते हैं. देयर इज नथिंग न्यू कंसेप्ट. सेम कंसेप्ट इज देयर इनटू द सी लैंग्वेज एज वेल, अगर आपने कभी सी में डेटा टाइप पढ़े तो. लेकिन ये जो डेटा टाइप्स है, ये जो इंटीजर टाइप्स है, दे कैन बी साइंड और अनसाइंड. बाय डिफॉल्ट दे आर ऑल साइंड, बट यू कैन आल्सो मेक देम एज अनसाइंड. यू आस्क द क्वेश्चन, हाउ डू आई मेक इट अनसाइंड डेटा टाइप? अगर आपको अनसाइंड करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? इट इज वेरी सिंपल. यू कैन गो अहेड एंड यू कैन मेंशन क्रिएट टेबल समवेयर. लेट्स से फॉर एग्जांपल एक क्रिएट टेबल, टेबल का कुछ तो नाम देते हैं. लेट्स से T1 is the name of a table. I'm saying C1 and I can say that, let's say this is small int, this is small int. C2, let's say it is int, let's say it is int. So and I have created it. तो इसमें फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा, by default it is signed, but I want to make them as unsigned. How do you make it unsigned? To make it unsigned, आपका जो small int है उसके बाद में आपको एक कीवर्ड ऐड करना है, and that keyword is nothing but unsigned keyword. Unsigned keyword will make it as an unsigned data type. And on the parallel line, same thing. By default, if I'm writing only int, it is signed, but you add a keyword unsigned after that. जैसे हम लोग कहते हैं टाइप मॉडिफायर, ये उस टाइप का मॉडिफायर आप लोगों ने अप्लाई कर दिया. तो सर अब इसका रेंज क्या होगा? अब इसका रेंज होगा 0 से लेके ऑल 16 बिट्स. ए स्मॉल इंट है वो. अगर वो स्मॉल इंट है तो 0 से चालू होगा एंड ऑल 16 बिट 2 रेज़ टू 16. समथिंग सिमिलर अगर आप लोग इंट की बात कर रहे हो, इट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड 32 bits. So all 32 bits will be used for storing a data only, and this is nothing but how the ranges are defined. Okay, that is great. What about floating point numbers? Now floating point numbers अगर एक लाइन में कहना है, then these floating point numbers are same as C language float and C language double. C language float and C language double, just for sake of information. If you have that information, well and good. Even though you don't have information, doesn't make any difference. ये जो floating point values होते हैं, these are not exact value. These are always approximate precisions. And then where it is, how exactly it is stored, they are internally stored as IEEE 754 format. सो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कैसे स्टोर करने हैं, ये मेरा या आपका या सी का या डेटाबेस का कंसेप्ट नहीं है. दिस इज IEEE 754 फॉर्मेट इज देयर. आई रिपीट, दिस फॉर्मेट रिमेन्स सेम. आप लोग सी में रहोगे तो भी वही फॉर्मेट है, C++ में वही फॉर्मेट है, जावा में वही फॉर्मेट है, C# में वही फॉर्मेट है, डेटाबेस में वही फॉर्मेट है. सो देयर इज नो पॉइंट. अगर आपको फॉर्मेट पता है अच्छी बात है, नहीं पता है स्टिल अच्छी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता. जस्ट टू टेल यू दैट उसके अंदर there are two variants are there. One is 32-bit variant is there and another is 64-bit variant is there. So 32-bit variant, that is nothing but float, and 64-bit variant is nothing but double. जिस किसी को भी इंटरेस्ट हो, मैंने कहा जरूरी नहीं है, बट लेकिन जिस किसी को भी इंटरेस्ट हो, प्लीज गो टू द गूगल, गो टू द विकिपीडिया एंड ट्राई टू फाइंड आउट ये 7.5 फॉर्मेट क्या होता है, उसमें लॉगरिदम कैसे स्टोर करते हैं, उसके अंदर मैंटिसा कैसे स्टोर करते हैं, और वो कितने बिट्स किसके लिए देते हैं, एंड एक्सेट्रा लिव इट, कोई जरूरत नहीं. बट एज आई सेड दैट दिस इज नॉट द एक्यूरेट वैल्यू. आप लोगों को पता होगा कि हम लोग कहते हैं कि पाई की वैल्यू क्या होती है, सो 3.1415 और समथिंग लाइक दैट. सो इट इज नॉट एक्यूरेट up to some places of decimal. So if it is not accurate up to some places of decimal, you are looking for, नहीं से मुझको up to 6 places मेरे को exact value चाहिए, या फिर up to 10 places मुझको exact value चाहिए. If you at all have this kind of requirement, if you at all have this kind of requirement, in that case you should not use float and double. Float and double faster काम करते हैं, लेकिन आप लोग 100% accuracy expect नहीं कर सकते हो. If you are looking for accuracy, please use a decimal type. If you are looking for accuracy, please use decimal type. And if you are talking about decimal type, I'm going ahead. So I'm saying that I'm looking for exact precision. So आपका exact precision क्या है? आपका exact precision क्या है? Up to 2 places or 3 places of decimal, I want accurate result. सिर्फ एक पॉइंट है जो लोग यूजुअली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. When you are creating a table, when you are creating a table, let's say T2 table,
and inside that you have provided some sort of a column and you are written decimal and you are written decimal. अगर अगर हम लोग ऐसा वैल्यू लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 समथिंग लाइक दैट, यू आर राइटिंग 8,3 8,3। बहुत लोगों को ऐसा लगता है 8,3 का मतलब होता है 8,3 का मतलब होता है 8 प्लेसेस डेसिमल के पहले और 3 प्लेसेस डेसिमल के बाद में। दिस इज नॉट करेक्ट। द करेक्ट थिंग इज दैट टोटल देयर आर 8 डिजिट्स, टोटल देयर आर 8 डिजिट्स। ये जो 8 है, 8 इज रिप्रेजेंटिंग all your 8 digits, all 8 digits, while 3 is representing 3 places after the decimal. Just take care of it and it is guaranteed that result will be always produced for 3 places, up to 3 places, most accurate result. मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में देखा है, people prefer using decimal, पीपल प्रीफर यूजिंग डेसिमल ड्यू टू इट्स एक्यूरेसी। तो हम लोग फाइनेंशियल कैलकुलेशन में जाते हैं तो हम लोग कहते हैं अप टू 2 to 3 डेसिमल ये एग्जैक्टली एक्यूरेट आना चाहिए। अगर आप लोग साइंटिफिक कैलकुलेशन में जाते हो, साइंटिफिक कैलकुलेशन में बहुत बार आप लोग कहते हैं कि अप टू 7 or 8 प्लेसेस ऑफ डेसिमल आई एम लुकिंग फॉर एक्यूरेसी। सो पीपल प्रीफर यूजिंग डेसिमल over float and double into the real projects. Apart from this, there are date time related types are there. अगेन डेट टाइम रिलेटेड टाइप्स में बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए, बट उनका एक्चुअल पावर अभी मैं आपको कितना भी बताऊंगा तो भी समझ में नहीं आएगा। उनका एक्चुअल पावर आपको तब समझ में आएगा जब हम लोग उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो ऑपरेशंस करेंगे। आपको याद होगा जब हमने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था तो हम लोगों ने डेट के ऊपर बहुत सारे फंक्शंस लिखे थे। तो डेट इसके अंदर इतने डेज ऐड किए तो क्या होगा, इन दो डेट्स के बीच का डिफरेंस कितना है, और ये निकालने के लिए हमने बहुत सारे एफर्ट्स लिए थे, बहुत सारा कैलकुलेशन किया था। नाउ यू आर इनटू द आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस कहता है कि आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ये सारे फंक्शंस मैंने लिख के रखे हुए हैं, तुम चुपचाप से कॉल कर लो। आई कैन डू इट वेल, आई कैन डू इट वेल। एंड देन गोइंग अहेड, वी हैव गॉट अ डेटा टाइप कॉल्ड एज डेट डेटा टाइप। डेट के अंदर क्या आता है, डे मंथ एंड ईयर। day month and year, that is something that you can store it. What about time? Time is talking about hours, minutes and seconds. Please note that hours, minutes and second, so this is not a time of a day, this is a duration. So usually you want to say that ये इवेंट कितने घंटे पहले हुआ, ये इवेंट 10 घंटे पहले हुआ या फिर 15 घंटे पहले हुआ या 48 आवर्स बिफोर हुआ या 100 आवर्स बिफोर हुआ। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द ड्यूरेशन। द टाइम ओवर हियर इज नॉट टाइम ऑफ डे। ए टाइम ऑफ डे कभी भी 24 आवर्स के ऊपर नहीं जाता है। दिस इज समथिंग, इट हैज गॉट रेंज अप टू 138 आवर्स। सो 138 आवर्स आगे या पीछे ये जा सकता है। सो इट इज टॉकिंग अबाउट द ड्यूरेशन, नॉट अबाउट टाइम ऑफ द डेट। तो टिपिकली सपोज दैट आप लोग ज्वाइनिंग डेट की बात करते हो। अगर किसी एम्प्लॉय का ज्वाइनिंग डेट है, ज्वाइनिंग डेट में वी आर ऑलवेज बॉदर्ड अबाउट एट व्हाट टाइम, एट व्हाट डेट ही हैज ज्वाइंड, हाउएवर लेकिन हम लोग यूजुअली किसी के बर्थ की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं नहीं नहीं, हमें सिर्फ डेट नहीं चाहिए, हमें डेट और टाइम चाहिए। क्यों, उसकी जन्म कुंडली निकालनी है। हाँ, ये पॉसिबल है कि आप उसकी जन्म कुंडली निकाल सकते हो विथ डेट एंड टाइम, राइट। या फिर आप लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शन में जा रहे हो, यू वांट टू नो दैट एट ऑन विच डेट, एट व्हाट टाइम द एक्चुअल ट्रांजैक्शन टेकन अप। सो ये भी आपको पता करना चाहिए। सो इट इज गिवन। आई एम गोइंग अहेड, वी आल्सो हैव गॉट समथिंग कॉल्ड अ टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प is trying to tell you the number of seconds from 1st January 1970, 1st January 1970 मिडनाइट से लेके हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर। जब लोग जावा में जाओगे तो आपको पता चलेगा जावा का डेट क्लास भी कुछ ऐसा ही कुछ स्टोर करता है, बट इट इज समथिंग कॉल्ड एज अ टाइम स्टैम्प। इट इज अवेलेबल to represent a particular time after 1st January 1970. And something we also have got year, and year is trying to tell you your year after 1900, 1901 onwards, how many years are there. So it is trying to show you this. Please note ये काउंटिंग इसका 1900 के आगे होता है। लाइक अगर हम लोग कहते हैं अभी 2020, ये 2020 वैसे देखा जाए तो 2020th ईयर है, बट फ्रॉम 1900 ऑनवर्ड्स पॉइंट अगर आप लोग बात करोगे इट इज लाइक अ 120 years after 1900, so you are talking about that. So again I say that this is just an overview कि ऐसे ऐसे अलग अलग क्लासेस अवेलेबल है, अलग अलग डेटा टाइप्स अवेलेबल है। जब हम लोग एक्चुअल सिक्वल फंक्शंस देखेंगे we can talk about much more details. And then I'm going ahead talking about what are different string types। So यहाँ पर string के बहुत सारे टाइप है।
There is something called character type, typically for the smaller data. Varchar is probably for the larger data, and there's a different category. You call it text category. You may call it a tiny text. You may call it text. You may call it as a medium text. You may call it as a long text. Oh, this kind of a text category is there. एक काम करते हैं, हम लोग एक टेक्स्ट कैटेगरी का मैं पहले आपको डेमो देता हूँ ताकि आपको कुछ चीजें समझ में आ जाए और उसके बाद में हम लोग उसका देखेंगे. सो फॉर द टेक्स्ट कैटेगरी आई वांट यू पीपल टू क्रिएट अ टेबल. डोंट वरी, मैं क्रिएट करता हूँ आपके साथ में. Create table test, and I can create 3 columns. Again, this is just a sample example, nothing fancy example. And I'm saying that we can have char for 10 characters. C2, again I'm having char for 20 characters. नहीं char नहीं, अब वापस से char नहीं चाहिए, char already हम लोगों ने कर लिया है. So not char once again, we will use varchar. C2, varchar for another 10 characters. And wait, we have got C3, which is nothing but text for 10 characters. And I want to see, is it same? Is it different? And let me first of all show you, पहले बना के दिखाता हूँ और बाद में difference बताता हूँ. So not very different or difficult. Create table test, and I'm saying that C1, we have got char of 10 characters. Very good. C2, we have got varchar of 10 characters, and C3 we are saying that it is a text of 10 characters, right? And once we have done that, I just want कहाँ पर गया है अपना command prompt? Yes, I have created a test table. Wait, I want to insert some record. So insert into test values. अब मैं इसके लिए वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ ABCD पहले में, second वाले में भी I want to insert the same ABCD, and for the third again I'm inserting ABCD. So I inserted ABCD throughout, ABCD. So फर्क क्या पड़ा? फर्क वैसे कुछ आपको दिखेगा नहीं. मैंने कहा ना, as far as output is concerned, you may not be able to see the difference. So you find that output wise it is same. Let me tell you how internally it worked. अब थोड़ा सा मैं इंटरनल्स बताने जा रहा हूँ, so please pay attention. कल मैंने आपको कुछ बताया था. कल मैंने आपको क्या बताया था? Physical layout. In a physical layout, I said that all rows may not be stored contiguously. Even though rows are not stored contiguously, all columns inside the row, they are stored contiguously. कल का डायग्राम शायद आपके सामने होगा, so you can just recall the diagram. So वहां पर हम लोगों ने जो रिकॉर्ड बनाए थे, हमारे सारे रिकॉर्ड स्कैटर्ड थे, लेकिन हर एक रिकॉर्ड के अंदर के सारे वैल्यूज कंसेक्यूटिव थे. हर एक रिकॉर्ड के अंदर के वैल्यूज दे वर कंसेक्यूटिव. हर एक रिकॉर्ड के अंदर के वैल्यूज दे वर कंसेक्यूटिव. सो दोज वर गोइंग गुड. तो गेटिंग बैक टू दिस, तो सर एग्जैक्टली अभी क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन यू. एग्जैक्टली इसका स्टोरेज कैसे होता है? ये जो रिकॉर्ड अभी मैंने इंसर्ट किया ABCD, इसका रिकॉर्ड स्टोरेज कैसे हुआ? इसका स्टोरेज कुछ ऐसे हुआ. दिस इज व्हाट द मेमोरी इज गिवन, something like this. Memory is given, that's it. And then तो ये जो C1 है, सब में आपने ABCD स्टोर किया है. If it is a char data type, for the char data type, the data is stored as ABCD, and next six characters, they are kept empty. Oh, is it so? क्योंकि आपने char 10 बोला है ना, तो it will keep the next 10 characters empty. The second one, you talk about the variable character. So कल कोई तो मुझको पूछ रहा था, सर char क्यों यूज कर रहे हो, varchar क्यों नहीं यूज कर रहे हो? Here I am trying to explain you the difference. Please pay attention. ये जब हम लोग varchar कर रहे हो, varchar के अंदर ये ABCD का लेंथ कितना है? What is the length of ABCD string? ये जो मेरा ABCD जो string मैंने इंटर किया था, उसका लेंथ है 4. Now listen, what varchar does? Varchar stores the length first, and then store only that ABCD. It stores the length first and then it stores ABCD. तो जितनी मेमोरी की जरूरत है उतनी ही मेमोरी एलोकेट की गई है. जितनी मेमोरी की जरूरत है उतनी ही मेमोरी एलोकेट की गई है. एंड यू हैव प्रोवाइडेड द लेंथ ओवर देयर. लेंथ इज इक्वल टू 4.
ए वेट, स्टोरी इज नॉट येट ओवर, स्टोरी इज नॉट येट ओवर. व्हाट अबाउट टेक्स्ट? अब टेक्स्ट में थोड़ा सा गड़बड़ है. टेक्स्ट में व्हेन यू आर सेइंग द टेक्स्ट 10, व्हेन यू आर सेइंग टेक्स्ट 10, मैं आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहा था, ये टेक्स्ट के अंदर बहुत सारे वेरिएशंस हैं. यहाँ पर क्या है, टाइनी टेक्स्ट है, टाइनी टेक्स्ट है, मीडियम टेक्स्ट है, लॉन्ग टेक्स्ट है, और हर एक का कुछ ना कुछ तो मैक्स साइज है, हर एक का कुछ ना कुछ तो मैक्स साइज है. अभी आप लोगों ने बोला है टेक्स्ट विथ 10, टेक्स्ट विथ 10 मतलब उसको लग रहा है कि आप शायद इसके बारे में बात कर रहे हो कि यू आर लुकिंग फॉर अ रेंज विच इज लेस देन 255. और जब उसको लगता है यू आर लुकिंग फॉर अ रेंज लेस देन 255, वो आपने जो टेक्स्ट लिखा है, टू बी फ्रैंक उस टेक्स्ट को वो इग्नोर कर रहा है. आपने जो लिखा है उसको इग्नोर कर रहा है, और रेदर वो इस टेक्स्ट को कंसिडर कर रहा है कि शायद आपको टाइनी टेक्स्ट कहना था. और जब लोग कहते हो टाइनी टेक्स्ट मीन्स व्हाट, अप टू, ये 10 लिमिट का कोई मतलब नहीं है. नाउ इट हैज टेकन लिमिट अप टू 255 कैरेक्टर्स. इट हैज टेकन अ लिमिट अप टू 255 कैरेक्टर्स. प्लीज अंडरस्टैंड. ओके, इज इट सो? और एक चीज, ये जो सारे टेक्स्ट वाले डेटा टाइप थे, लेट इट बी टाइनी टेक्स्ट, लेट इट बी टेक्स्ट, लेट इट बी मीडियम टेक्स्ट, लेट इट बी लॉन्ग टेक्स्ट, ये जितने सारे टेक्स्ट वाले डेटा टाइप थे, उनका स्टोरेज कभी भी रो के अंदर नहीं होता है. उसका स्टोरेज रो के अंदर नहीं होता है, उसका स्टोरेज रो के बाहर होता है. तो ये जो आपका एबीसीडी है, दैट एबीसीडी विल बी स्टोर्ड समवेयर आउटसाइड द रिकॉर्ड. It will not be stored inside the record, it will be stored outside the record, and its address, its pointer will be kept inside the record. Its pointer will be kept inside record. So what I understand is that ये जो char और varchar है, ये जो char और varchar है, इन दोनों केसेस में, इन दोनों केसेस में it is internal storage, और इसको हम लोग कहते हैं इनलाइन स्टोरेज, इनलाइन टू द रिकॉर्ड, इनलाइन टू द रिकॉर्ड. हाउएवर, ये जो आपको टेक्स्ट दिख रहा है, इसका इसका स्टोरेज हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज. एक्सटर्नल का मतलब है आउटसाइड द रिकॉर्ड. डायग्राम देखना, फालतू में कहीं कहीं भी वर्ड कहीं पर भी मत लगाना. सर वो हार्ड डिस्क के इंटरनल है क्या, सर वो रैम के इंटरनल है क्या, ऐसे फालतू चीजें सोचने की कोई जरूरत नहीं है. मैंने बहुत क्लियरली बताया कि जिसका स्टोरेज रिकॉर्ड के अंदर है वो इनलाइन स्टोरेज, जिसका स्टोरेज रिकॉर्ड के बाहर है, सो इट इज विथ रिस्पेक्ट टू रिकॉर्ड, इट इज एक्सटर्नल स्टोरेज. विथ रिस्पेक्ट टू रिकॉर्ड इट इज एक्सटर्नल स्टोरेज. चलो, दिस इज डन. इसके अलावा, इसके अलावा वेट फॉर अ मिनट, देयर आर मेनी मोर थिंग्स टू टॉक अबाउट. Here you find that in this part, here you find that this is a fixed storage और फिक्स साइज. इसको कितना साइज लगने वाला है ये फिक्स्ड है, और अगर आप लोगों ने उसको यूज नहीं भी किया तो दैट मच स्पेस विल रिमेन अनयूज्ड. आप लोगों ने नोट किया है? यस, दैट मच स्पेस विल रिमेन अनयूज्ड. आपका स्पेस अनयूज रहने वाला है. However, you talk about this, you talk about this one is, this one, this is variable storage. It is a variable size. आप इसका साइज कम ज्यादा कर सकते हो, और जितनी साइज की जरूरत है उतना ही साइज आपके लिए एलोकेट किया जाएगा, उतना ही साइज आपके लिए ऑक्यूपाई किया जाएगा. नाउ दिस इज फ्यू थिंग्स दैट यू सी. डोंट वरी, आपके लिए मैंने सब कुछ समराइज करके रखा हुआ है. नथिंग ग्रेट फॉर यू, nothing to worry for you. Character, it is fixed inline storage. If the smaller data is given, rest of the space is unused. It is very clear. Very faster access, very fast access, क्योंकि आपका पूरा का पूरा डेटा वहां पर है. As far as varchar is concerned, it is a variable inline storage. It stores the length and its characters. दिख रहा है? It is a slower access than character. Why is slower access? क्योंकि उसको पहले लेंथ पढ़ना पड़ता है, और लेंथ के बाद में बचे हुए कैरेक्टर पढ़ने पड़ते हैं. नेक्स्ट, टेक्स्ट, आई एम सेइंग दैट इट इज वेरिएबल एक्सटर्नल स्टोरेज, एक्सटर्नल टू द रिकॉर्ड. वेरी स्लो एक्सेस, क्योंकि यहाँ पर पॉइंटर इन्वॉल्व है. आपको पहले रिकॉर्ड में जाना पड़ता है, वहां से उसका एड्रेस लेना पड़ता है, और एड्रेस लेने के बाद में आपको अगले रिकॉर्ड लेने पड़ते हैं. सो दैट इज, इट इज सेइंग दैट इट इज वेरी स्लो एक्सेस. एंड देन इट इज नॉट यूज फॉर इंडेक्सिंग. जब इंडेक्सिंग का टॉपिक आएगा तो मैं आपको बताऊंगा व्हाई इट इज नॉट गुड फॉर इंडेक्सिंग एंड ऑल दैट. आई वाज जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ बिट ऑफ एग्जांपल व्हाट इट इज डूइंग. ये रहा एक डिफरेंस, ये रहा एक डिफरेंस. इसका स्टोरेज का डिफरेंस इज वन ऑफ दैट. और दूसरा डिफरेंस शायद मैंने आपको बताया था कि उसको जो आपने साइज दिया है, क्यार का साइज दिया आपने, क्यार का साइज दिया है 10,
और अपने varchar का साइज दिया 10, वो इस साइज को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, लेकिन टेक्स्ट का साइज वो टेक्स्ट के साइज के ऊपर कंसिडर नहीं करता, उसको कैटेगराइज करता है whether it is tiny text, whether it is medium text, और फिर वो उसके हिसाब से जाता है. सर नहीं समझा, wait for a minute, let us insert one more record so that you understand what exactly I'm trying to tell you. You go ahead and try to insert one more record. So insert into test, and I'm saying values, and let's say that if I said A B C D E F G H, हाँ मेरे को पता है आपको ABCD आता है. Just to show you the point, IJ. Here I'm trying to insert not 10 characters, but I'm trying to enter 11 character. ये आपने क्या कितना बोला है 10, और मैं 11 character insert कर रहा हूँ. मैं 11 character insert कर रहा हूँ. What should happen? What should happen? This gives you error. And what error it gives you? Data too long for C1. Data is too long for C1. आप लोग करके देखो. Are you getting the same error? Are you getting the same error? Data too long for the C1 column at row number so and so and so. Yes, I'm expecting that this error, it should be with you. आपको यही error आना चाहिए. It is very much expected. Very much expected. But if not, I'm just going ahead. हम लोग और एक चीज ट्राई करते हैं. तो एक काम करते हैं, हम लोग C1 को, लिसन केयरफुली, C1 को मैं 10 कैरेक्टर दे रहा हूं, लेकिन मैं C2 को 11 कैरेक्टर दे रहा हूं. नाउ इन दिस केस यू फाइंड दैट कि अब ये एरर देता है, वापस से एरर देता है, बट अभी C1 के लिए नहीं दे रहा है, अभी C2 के लिए एरर दे रहा है. डेटा टू लॉन्ग फॉर द कॉलम C2. प्लीज गो अहेड, चेक इट, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल. मैंने कहा ना, आज भी हम लोग कोई बहुत फैंसी क्वेरीज नहीं लिख रहे हैं. दे आर सिंपल क्वेरीज. C2, you are getting the same error. However, you try the same with C3 column, and I said that it is no error. Why it is no error? Why it is no error? Because up to 255 characters allowed in tiny text. Tiny text may up to 255 characters are allowed, and there you find that yes, it is allowed. It is allowed, and you can try to fetch all the records once again. Select star from. Someone was asking me what is star. मैंने ऑलरेडी क्लासरूम में एक दो बार बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूं. स्टार मीन्स ऑल द कॉलम्स. अमित, इट इज योर चॉइस. उस लिमिट का कोई मतलब नहीं है. दैट लिमिट विल बी इग्नोर्ड. दैट लिमिट जस्ट टेल हिम, गिव्स इट आइडिया कि अगर वो 255 से कम है तो उसको टाइनी टेक्स्ट कंसीडर करता है. वेट फॉर अ मिनट. जो मैंने कहा आपको शायद ज्यादा अच्छे समझ में आएगा. इफ यू से डिस्क्राइब ऑन टू दैट, आप लोग इसको डिस्क्राइब करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या कहने की कोशिश की है. हैव अ लुक एट दिस. इट डजंट टेक इट. इसको 10 करके ले रहा है, इसको 10 करके ले ही नहीं रहा है, उसको टाइनी टेक्स्ट करके ले रहा है. आई होप अमित नाउ दिस इज क्लियर. अब आपको सर मेरे को ये नहीं देना चाहिए था, वो तुम्हारा चॉइस है. देन यू कैन राइट इट टाइनी टेक्स्ट ऑन योर ओन, नो प्रॉब्लम, राइट. प्लीज गो अहेड, try these commands C1, C2, C3, and you ensure that your data is getting inserted. इसके अंदर ये 11 कैरेक्टर का डेटा भी जाता है, क्योंकि उसका लिमिट 10 है ही नहीं, उसका लिमिट बाय डिफॉल्ट 255. प्लीज ट्राई इट, लेट मी नो वेदर इट इज गिविंग यू सेम आउटपुट एट योर एंड और नॉट. There is some question, someone is saying that means अगर टेक्स्ट लिखा है तो साइज नहीं लिखनी पड़ती है. यस, आइडियली आपने साइज नहीं लिखनी चाहिए, उस साइज का कोई मतलब नहीं होता है. यू शुड बी चूजिंग द राइट वन, टाइनी टेक्स्ट और मीडियम टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन योर नीड. लेकिन उसके अंदर आप लोगों ने 1000 लिखा या 200 लिखा, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. राइट, गुड. लॉट ऑफ पीपल आर डन दैट. फैंटास्टिक. कहाँ पर गया, कुछ क्वेश्चन था. All data will insert no error and show 3 rows in table test. Wow.
मेरे को लगा ही था ये किसी ना किसी को तो प्रॉब्लम आएगा। सो वर्षा के मशीन में कोई एरर नहीं आ रहा है और वर्षा के मशीन के ऊपर तीनों की तीनों रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट। मैंने कहा ना किसी का तो अलग होना चाहिए, सबका सेम होगा तो कैसे चलेगा। आई टेल यू वर्षा, गिव मी अ मिनट। सर इफ वी इंसर्ट मोर देन 255 कैरेक्टर्स, नो, इफ यू इंसर्ट, अगर आपने टेक्स्ट के लिए थर्ड कॉलम के लिए आपने 255 से ज्यादा एंटर किया फिर वो एरर देगा। 255 तक कोई एरर नहीं देगा, 255 से ज्यादा अगर आप लोगों ने किया तो एरर देगा। राइट 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 कुछ रहा। इफ साइज इज मोर देन 10, देन देन फॉर टेक्स्ट, देन व्हाट इट विल कंसिडर। कुछ नहीं, मैंने कहा ना उसके जो रेंज दिया है उसका रेंज कितना है। आपने 255 से नीचे वाला कोई भी दे दिया तो टाइनी टेक्स्ट ही कंसिडर करेगा। अगर आपने 255 से ऊपर वाले रेंज में दे दिया तो उसको स्मॉल टेक्स्ट कंसिडर करेगा। प्रियंका, यू वांट टू टेक अ लुक एट दिस, उसके रेंजेस मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। किसका रेंज क्या है, टाइनी टेक्स्ट का रेंज कितना है, दिस वन व्हाट इज दैट, 255। टेक्स्ट का रेंज 64K, मीडियम टेक्स्ट का रेंज 16M, लॉन्ग टेक्स्ट का रेंज 4G। सो हर एक के जो रेंज है वो मैंने आपको दिए हुए हैं, सो इट विल फॉलो देम। जहां तक हो सके प्लीज आस्क द क्वेश्चंस अर्ली। यू आर आस्किंग क्वेश्चन टू लेट, वी आर मेकिंग सम वेरी हेवी कॉन्टेक्स्ट स्विच, राइट। प्लीज वेन एवर वी आर इन अ सीक्वेंस, जो भी टॉपिक चल रहा है, इट विल, आई रियली रिक्वेस्ट, प्लीज आस्क क्वेश्चन इमीडिएटली, दैट विल रियली हेल्प, यू नो। Otherwise I'll take up your question, you know, sometime too late, then there will be big trouble, right? It is a context switching. I don't really want to do the context switch now. uh, is we use any type of which is greater than value specified insert the character, then will it accept, or it will accept only in case of tiny text. Vaibhav, your question is not clear. If we use any type which is greater than the value specified and insert the character, then will it accept? If it is greater, then it will give you error. Let's say अभी tiny text है, tiny text मतलब 255 कैरेक्टर, 255 कैरेक्टर से अगर आप लोग आगे जा रहे हो then it will be error. 64K वाला टेक्स्ट कैसे असाइन करें, 64K मतलब दैट लॉन्ग टेक्स्ट यू कैन असाइन 65,536 कैरेक्टर्स आप लोग इंसर्ट कर सकते हो। मैंने कहा इतना बड़ा आप लोग कर सकते हो, हर बार आपने इतना बड़ा इंसर्ट करना चाहिए, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। So 10 gets text into the tiny, or it consider it according to input. It consider according to the, आपने जो टेक्स्ट 10 दिया है, द टेक्स्ट 10, मैं फिर से बता रहा हूं, आप लोग प्लीज लिसन केयरफुली। टेक्स्ट 10 मतलब ये होता है कि आप लोग टाइनी टेक्स्ट के रेंज में जा रहे हो। टाइनी टेक्स्ट का रेंज है 255 कैरेक्टर का। जब मैं लिखता हूं टेक्स्ट 10, इट विल कंसिडर इट, इट विल कंसिडर इट एज टाइनी टेक्स्ट। अगर मैं लिखता हूं टेक्स्ट 300, अगर मैं टेक्स्ट 300, 300 का मतलब है ये टाइनी टेक्स्ट के ऊपर वाले रेंज में जा रहा है। सो ऊपर वाले रेंज में इट विल ट्रीट इट एज अ टेक्स्ट, इट विल ट्रीट इट एज अ नॉर्मल टेक्स्ट विच इज अप टू 64K। वेट फॉर अ मिनट, अगर मैं जाके लिखता हूं टेक्स्ट 1 लाख, 1 लाख मतलब ये 64K के भी ऊपर के रेंज में जा रहा है। आपने यहां पर क्या लिखा है इसके हिसाब से वो डिसाइड करता है कि मुझको टाइनी टेक्स्ट लेना है या फिर मीडियम टेक्स्ट लेना है। इज दैट ओके? किसने क्वेश्चन पूछा था? जस्ट अ मिनट। ओके, हम लोग कहाँ पर थे? वैभव का, दिस इज वैभव, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। रुको, हम लोग आगे जाते हैं। देयर इज सम अदर क्वेश्चन समवन इज आस्किंग। कहाँ पर गया? 64K वाला के टेक्स्ट कैसे असाइन करें? आई गेस आई ऑलरेडी आंसर्ड। 64K वाला टेक्स्ट मतलब इट इज दैट लॉन्ग टेक्स्ट। अब आप लोग कैसे असाइन करोगे, क्या कहते हैं, इंसर्ट क्वेरी में असाइन करोगे या प्रोग्रामेटिकली असाइन करोगे, दैट इज अप टू यू। आपको इंसर्ट क्वेरी में इतना लंबा चौड़ा लिखना है, यू कैन ऑलवेज राइट इट, नो वन इज स्टॉपिंग यू। सो 10 गेट्स मैंने बताया। रितेश का कुछ क्वेश्चन है, इफ इंसर्ट मोर देन 256 वर्ड्स इन अ टेक्स्ट, वर्ड्स और कैरेक्टर्स यू आर टॉकिंग अबाउट। मैंने बताया था, आप लोग या तो सुन नहीं रहे हो या फिर मैं बता नहीं पा रहा हूँ, प्लीज पे अटेंशन। मैंने फिर से बताया कि यहाँ पर अगर आप लोग टेक्स्ट 10 लिखते हो, बाय डिफॉल्ट इट इज 255 कैरेक्टर, टाइनी टेक्स्ट के लिए सेट हो गया। 255 से ज्यादा कैरेक्टर आप लोग इंसर्ट करने की कोशिश करोगे, इट विल गिव यू एरर।
I guess it was very clear, Ritesh. Gurmeet is saying that can text take image files? नॉट रियली. इमेज फाइल नहीं, लेकिन इमेज का बेस 64 इनकोडिंग जो है वो ले सकते हो. बेस 64 इनकोडिंग नाम का कंसेप्ट होता है विच कैन कन्वर्ट योर इमेज इनटू द टेक्स्ट, वो ले सकते हो. इमेज के लिए अपने पास अगला डेटा टाइप अवेलेबल है. आई विल टॉक अबाउट इट, गिव मी मिनट. मीन्स रिमेनिंग स्पेस इज वेस्टेड. तेजस, हु सेड दैट रिमेनिंग स्पेस इज वेस्टेड? यहाँ पर हम लोग का कहा टाइनी टेक्स्ट में एलोकेशन वैसे होता ही नहीं है. टाइनी टेक्स्ट में 255 के लिए पहले से एलोकेट होता ही नहीं है. मैंने ऐसे कहा क्या क्या टाइनी टेक्स्ट में 255 का एलोकेशन है? मैंने कहा 255 मैक्स है. मैंने कहा 255 मैक्स है. 255 इज नॉट एलोकेटेड देयर, सो देयर इज नो वेस्टेज. वेस्टेज सिर्फ कैर में होता है. यू कैन से वेस्टेज सिर्फ कैर में होता है क्योंकि कैर के लिए 10 इज ऑलरेडी एलोकेटेड. अगर आप लोग उससे कम दे रहे हो देन रेस्ट ऑफ द स्पेस विल गेट वेस्टेड. बाकी किसी में भी वेस्टेज नहीं होता है. जहां पर जितनी जरूरत होती है एज पर द डेटा एंटर्ड, वो उतनी मेमोरी एलोकेट कर लेता है. गुरमुख वेट फॉर अ मिनट, मैं जा रहा हूं आगे, अगला टॉपिक है. रुको जरा. एनी वे टू ऑप्टिमाइज द मेमोरी यूज इन केस ऑफ टेक्स्ट? इट इज ऑलरेडी मेमोरी ऑप्टिमाइज. व्हाट इज द प्रॉब्लम? जितनी मेमोरी उसको चाहिए वो उतनी ही एलोकेट कर रहा है. प्लीज अंडरस्टैंड. ये आपको डायग्राम दिख रहा है. आई हैवंट एलोकेटेड 255 बाइट्स ओवर हियर. आई हैव एलोकेटेड ओनली दिस मच जितना उसको चाहिए. सो यू डोंट वरी अबाउट द मेमोरी, दैट इज टेकन केयर. सी, जब हम लोग डेटाबेस जैसी टेक्नोलॉजी में आते हैं तो उसका मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन करना ये हमारा काम नहीं है. माई सिक्वल इज गुड इनफ इन डूइंग द टास्क. आपको क्या करना है? जो आपके काम का डेटा टाइप है उसको चूज करो और यूज करो. अगर आपको लगता है नहीं नहीं सर ये डेटा टाइप मेमोरी वेस्ट करता है, डोंट यूज. Go for other data type. Who is stopping you? Don't try to modify what MySQL has given. ये आपके हाथ में नहीं है और ये हम लोग नहीं कर सकते जब तक आप लोग MySQL की टीम में काम नहीं करते हो, राइट? ओनली टेक्स्ट लिखेंगे तो एज पर द इनपुट डिसाइड करेगा. ओनली टेक्स्ट लिखेंगे देन इट इज 64K. अमित, ओनली टेक्स्ट लिखेंगे देन इट इज 64K. Tiny text length is also variable. Yes, it is also variable, but max is 255. Text is variable, but max is 255. Text has lot of advantages. So varchar has specific use. Text has got lot of advantages, but the biggest disadvantage of a text is that it is external storage and it will bound to make it very slow. Pankaj, I hope you understand it. So maximum time हम लोग varchar ही use करते हैं. So अगर आपको पता है, let's say for example आपको जेंडर रखना है. Now gender is like male और female. Now ऐसे केस में you go for char. आपको पता है कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है. You are keeping only M और F. So वहां पर हम लोग char यूज करते हैं. अगर आपकी कुछ आईडीज है, लेट्स से अभी आपका पीआरएन नंबर जनरेट हुआ है. सो पीआरएन नंबर इफ इट लेट्स से इट इज अल्फाबेटिकल है, फॉर एग्जांपल अल्फा न्यूमेरिक है, या फिर आपका बैंकिंग का आईएफएससी कोड होता है. ना आईएफएससी कोड पीपल प्रीफर यूजिंग कैर. अकाउंट नंबर्स पीपल प्रीफर यूजिंग कैर. सो ऐसे जो डेटा होते हैं, आईडीज होते हैं, उसके लिए कैर प्रीफर किया जाता है. अगर आपका नेम है, एड्रेस है, दिस सॉर्ट ऑफ डेटा होगा तो वहां पर वैरचर यूज किया जाता है. नेम, डेट, नेम, पासवर्ड, एड्रेस, दिस काइंड ऑफ जहां पर डेटा कम ज्यादा हो सकता है, ऐसे केस में वैरचर प्रीफर किया जाता है. और जो बहुत बड़ा डेटा होगा, बहुत बड़ा डेटा होगा जिसके लिए स्लो एक्सेस हुआ तो भी चलने वाला है. लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं लिंक्डइन के ऊपर हूं एंड लिंक्डइन के ऊपर मुझको इन्फॉर्मेशन रखनी है अबाउट मी. अबाउट मी में एक पूरा का पूरा पैराग्राफ है. अब ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है, सो आई माइट से दैट उसको मेन टेबल में रखने की जरूरत नहीं है, उसको आप लोग आउटसाइड द टेबल रख सकते हो. और ऐसे केस में हम लोग यूजुअली टेक्स्ट डेटा टाइप के लिए जाते हैं. आई होप नाउ इट इज वेरी क्लियर. मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है. कैर कहां पर यूज करेगा, वैरचर कहां पर यूज करेगा, और टेक्स्ट या टाइनी टेक्स्ट कहां पर यूज करेगा, राइट? यस, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. दैट इज ग्रेट. व्हाट इफ वी यूज वी जस्ट डिक्लेयर कैर, देन व्हाट इज साइज? अगर आपने सिर्फ कैर या सिर्फ वैरचर लिखा, अगर आपने सिर्फ कैर या सिर्फ वैरचर लिखा, देन देन क्या होता है यार, देन इट इज वन कैरेक्टर. देन इट इज वन कैरेक्टर. ओनली कैर और ओनली वैरचर. आप पैरेंथेसिस लिखना भूल गए, देन इट इज ओनली वन कैरेक्टर. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. कभी आई गेस कल किसी ने तो गलती किया था. सो while creating a table उसने कैर के अंदर साइज लिखा ही नहीं, और जैसे वो नेम इंसर्ट कर रहा था इट वाज गिविंग एरर दैट इट इज टू लॉन्ग और टू शॉर्ट.
हाँ रुको, एक बीच में किसी का तो एक एरर आया था और उसके लिए 3 रिकॉर्ड इंसर्ट हुए थे. हु वाज दैट? देयर वाज सम गर्ल हु वाज हैविंग दैट काइंड ऑफ एरर. किसी ने तो मुझको पूछा था एंड आई टोल्ड हर जस्ट वेट फॉर सम टाइम. जस्ट टू टेल यू द पॉइंट, जस्ट टू टेल यू द पॉइंट, जिसको ये एरर आया था ये उसके लिए चल रहा है. हाँ वर्षा, करेक्ट. वर्षा, टेक अ लुक एट दिस. बाकी लोग जस्ट सुनना, समझ में आया तो अच्छी बात है. सो इट इज सिलेक्ट @ SQL mode. Varsha, can you just run this command and tell me your output? Copy paste your output. Try this command, select @ SQL mode and tell me your output. आप लोग भी अपना कमांड देना, आउटपुट पेस्ट मत करना यहाँ पर. Let me read the Varsha's output because for her things are working well, and I'm very sure in your case, this part is missing. This part is missing, and since this part is missing, you are able to insert even the records, या फिर वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर ले रहा है, सो वो स्ट्रिक्ट मोड में काम नहीं कर रहा है. इज इट वर्षा? Select @ SQL mode. I just ask you to give this command onto this. You got this? नहीं फैज, मैं आपको नहीं पूछ रहा हूँ. हाँ दैट इज ओके, आपका भी वैलिड है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. थिंग्स विल चेंज फ्रॉम माई सिक्वल वर्जन टू वर्जन. कुछ लोगों का वर्जन अलग है, कुछ लोगों का वर्जन अलग है, तो उसमें कम ज्यादा हो जाता है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. अभी बाकी सबके इसमें ये वाला चीज दिख रहा है, और वर्षा के इसमें वो डायरेक्टली इंसर्ट अलाउ कर रहा था बिकॉज दिस पार्ट वाज नॉट देयर. करेक्ट. तो वर्षा, आपको जाके इसको बदलना चाहिए. इसको कैसे बदलते हैं, ये आप बाद में आराम से लैब में करके देखना. इसको कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके चेंज करके आ जाता है. वर्षा, व्हाट इज योर आउटपुट? कैन यू कॉपी एंड पेस्ट दैट आउटपुट ओवर हियर सो दैट आई कैन क्विकली टेल यू. यू हैव गॉट स्ट्रिक्ट ट्रांस टेबल्स. नहीं, ये मयूर का आउटपुट है, मयूर का. अरे तुम्हारा नहीं चाहिए. सो यस, मेजॉरिटी ऑफ यू विल बी हैविंग दीज टू थिंग्स. आप में से बहुत सारे लोगों के यहाँ पर ये दो दिए होंगे. एंड एज आई सेड दैट दिस विल चेंज फ्रॉम द माइस्क्ल वर्जन टू वर्जन दैट यू पीपल आर ट्राइंग टू इंस्टॉल. आप लोगों ने जो माइस्क्ल के वर्जन इंस्टॉल किए उसके ऊपर से ये चीजें चेंज होने वाली है, ये मुझको पता है. दिस कमांड इज गिविंग योर सिक्वल मोड. ये आपका सर्वर का सेटिंग है, ये आपके सर्वर का सेटिंग है जो आपको पता चल रहा है. ये आपका सर्वर का सेटिंग है जो आपको पता चल रहा है. सो डोंट वरी. हाँ एग्जैक्टली. सो वर्षा, इन योर आउटपुट, टेक अ लुक एट दिस. In your output, it is no auto value on 0. So it is showing you that much. And what is missing is that this strict trans table is missing. And since it is missing, that is the reason it is allowing you even this part, right? Okay, no problem. I'm just going ahead. There is some other question. So वर्षा, आप बाद में जाके इसको रिपेयर कर लेना. वो my.ini नाम का एक फाइल होता है, उसको चेंज करना पड़ता है, और उसके बाद में आपका MySQL का सर्वर रिस्टार्ट करना पड़ता है. Anyway, I'm just going ahead. If we write column type text, then it accept more than 30, as we mentioned earlier. Yes. ऐसे क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हो? If we write the column type text, then it will accept more than 30. Yes, it will accept more than 30. As far as this type is given as a text, then it can accept up to 64K. It can accept a lot. 64K के ऊपर जाएगा, then it will give a error. Right? Yes, that is fine. No problem. चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं. Guys, please pay attention. Look like people are not paying attention. Please. Anyway, I'm just going ahead. I just explained you this. But sometime you might be interested in getting a data which is into like a binary format. A binary format का मतलब क्या है? I'm saying that you are looking for a data where you are looking for a pure binary. Binary in the sense images है. मैं लिखता हूँ images है. So Gurmeet, you are asking something like images है.
your PDFs are there, other documents are there, other documents are there. अगर आपको ऐसा डेटा रखना है, now for that kind of data, I should be going into the I should be going into the binary mode. And let me tell you, this binary and string types, they are similar. जैसे char होता है, वैसे ही binary होता है. जैसे varchar होता है, वैसे ही var binary होता है. अब जो कुछ भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इनलाइन स्टोरेज, वेरिएबल स्टोरेज, एवरीथिंग इज सेम. और जो बचा हुआ होता है, दिस इज समथिंग, ये जो ब्लॉब है, दिस इज ऑल लाइक टेक्स्ट, लाइक टेक्स्ट. सो इट इज वेरी कॉमन प्रैक्टिस, वेरी कॉमन प्रैक्टिस कि हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग ब्लॉब यूज करते हैं. अगर आपको किसी के फोटोज वगैरह स्टोर कर रहे हैं, MP3 फाइल सेव करना है, आपको PDF सेव करना है, सो दिस काइंड ऑफ केसेस वी यूजुअली गो फॉर स्टोरिंग अ ब्लॉब. तो सब मेनली बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, मेन डिफरेंस ये होता है, मेन डिफरेंस ये होता है कि वी हैव गॉट, यहाँ पर जो साइज होता है, हेयर साइज इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ कैरेक्टर एंड साइज ऑफ ईच कैरेक्टर, size of each character, while over here you simply talk about number of bytes. तो अब बोले सर साइज ऑफ कैरेक्टर डिफर होता है क्या? जिनको थोड़ा बहुत लैंग्वेजेस आते हैं उनको पता होगा, साइज ऑफ कैरेक्टर्स विल वैरी. ए साइज ऑफ कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन, ए साइज ऑफ कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन, डिपेंड ऑन, depend on character set or character encoding, and which all different character encodings are available. So there are three are most popular. बाद में आप लोग और भी पढ़ोगे, बाद में आप लोग और भी पढ़ोगे. तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इनकोडिंग जो आपके कंप्यूटर फंडामेंटल के बुक में दिए हुए हैं. सो वन, यू कॉल इट एज आस्की कैरेक्टर्स. कोई मुझे बताएगा आस्की में एक कैरेक्टर का साइज कितना होता है? आस्की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एक कैरेक्टर का साइज कितना होता है? इन आस्की ईच कैरेक्टर साइज कितना होता है? हाउ मेनी बाइट्स? इन टर्म्स ऑफ बाइट्स, यस इट इज 1 बाइट, जो कि आपको सी लैंग्वेज में दिखाई देता है. वेरी गुड. द सेकंड वन यू टॉक अबाउट इज लाइक a यूनिकोड कैरेक्टर स्कीम. एंड यूनिकोड कैरेक्टर स्कीम ये जावा में फॉलो होता है, जावा में फॉलो होता है. और जावा में हर एक कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट 2 बाइट्स का आता है. जावा में हर एक कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट 2 बाइट्स का आता है. एंड थर्ड वन अनदर वन, EBCDIF, समथिंग लाइक दिस. इसको हम लोग, कुछ लोग MBCS भी कहते हैं, मल्टी बाइट कैरेक्टर स्कीम. multi-byte character scheme, and that multi-byte character scheme is up to, let's say, 4 bytes, up to 4 bytes. So these are the kind of options available. जिन लोगों ने एग्जाम के लिए कंप्यूटर फंडामेंटल प्रिपेयर किया है, उन्होंने ये कभी कभी देखा होगा, इवन दो यू मे नॉट हैव यूज्ड इट, बट एटलीस्ट सुन के आपको पता होगा कि यहाँ पर इसलिए मैं कह रहा हूँ. सो आपके पास 10 कैरेक्टर है, तो साइज कितना होगा? 10 कैरेक्टर है, इट डिपेंड्स ऑन आपने कैरेक्टर सेट कौन सा यूज किया है. अगर आपने आस्की कैरेक्टर सेट यूज किया है तो 10 कैरेक्टर के लिए 10 बाइट होंगे. लेकिन अगर आपने यूनिकोड कैरेक्टर सेट यूज किया है तो 10 कैरेक्टर के लिए 20 बाइट्स होंगे. और अगर आप लोगों ने अगला वाला कैरेक्टर सेट यूज किया है, देन 10 कैरेक्टर के लिए प्रोबेबली 40 बाइट्स होंगे. सो इट विल चेंज. अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे सी लैंग्वेज के टाइप्स होते हैं, इनमरेशन एंड सेट, yes, these are the also additional types which are available into the MySQL. So this was just a kind of overview कि MySQL के अंदर कौन कौन से टाइप के डेटा टाइप्स अवेलेबल है. गुरमीत, आपको शायद आंसर मिल चुका होगा कि अगर आपको इमेजेस स्टोर करने हैं तो आपको ब्लॉब यूज करना चाहिए, एंड ब्लॉब इज समथिंग सिमिलर टू दिस. एंड श्याम इज आस्किंग द क्वेश्चन, डू वी रियली सेव द इमेज इन टेबल इन रियल एप्लीकेशंस? रियल एप्लीकेशंस, आंसर इज नो, वी डोंट स्टोर इट. हम लोगों को पता है क्योंकि वी हैव सफर्ड फ्रॉम इट. हम लोगों ने जब जिंदगी में पहली बार हमारा जो EMI सर्वर हम लोगों ने जो बनाया था, तो हम लोगों ने उसका, आपको शायद पता होगा, सनबीम के सारे सॉफ्टवेयर्स ये हमारे इन हाउस डेवलप सॉफ्टवेयर है. तो जब हम लोग इसको पहली बार बना रहे थे, सो आई गेस समवेयर 2011 2012 में, व्हेन वी डेवलप्ड इट फॉर फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट बैच, हमने सारे बच्चों के फोटो निकाले थे और सारे एक बच्चों के फोटो हमने डेटाबेस के SQL सर्वर के अंदर ऐड किए थे. तो सर वो चला था क्या? वो चल तो गया था, लिसन केयरफुली, चल तो गया था, बट द डे वी हैव अपलोडेड ऑल द फोटोज, माय आवर होल मशीन वाज एक्चुअली स्लो. हमारा पूरा का पूरा SQL सर्वर स्लो हो गया था, and that is not really a good practice. So even the option is available, it is not a very standard practice to upload the images or like this kind of huge documents inside the database. तो सर लोग कैसे मैनेज करते हैं? यूजुअली लोग उसको किसी ना किसी फोल्डर में डालते हैं, यूजुअली लोग उसको किसी ना किसी फोल्डर में डालते हैं,
और वो जो फोल्डर का जो पाथ होता है वो पाथ डेटाबेस में ऐड कर दे. दिस इज मोस्ट कॉमन टेक्निक. सो श्याम, वट एवर यू आर सेइंग इज करेक्ट. रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में हम लोग इमेज डायरेक्टली टेबल के अंदर नहीं डालते, बट वी डू इट इन दिस वे. आई होप यू गॉट द पॉइंट, राइट. हम लोग आगे जा सकते हैं एंड टॉकिंग अबाउट क्या बता रहा था मैं आपको. सो गेटिंग बैक टू द पॉइंट, हम लोग एक दो क्वेरीज देखते हैं अभी. हाउ डू वी कैन इंसर्ट अ रिकॉर्ड, जस्ट सम बेसिक डेमोज वी कैन टेक अ लुक एट. ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ. मैं सारे स्लाइड आपको पढ़ के नहीं दिखाने वाला हूँ. स्पेशली व्हेन इट कम डाउन टू द प्रैक्टिकल ओरिएंटेड स्लाइड्स विल बी शेयर्ड विथ यू डायरेक्टली. यू कैन टेक अप द स्लाइड्स एंड यू कैन फॉलो देम, राइट. हाँ, अभी के लिए मैं आपको करके दिखाता हूँ डायरेक्टली यहाँ पर. तो अब हम लोग अगली क्वेरी की बात कर रहे हैं. Which is the next query? The next query I want to talk about comes from a DML category, and this query is an insert query. हाँ हाँ, आपको पता है हमने ऑलरेडी इंसर्ट किया हुआ है, लेकिन मैंने आपको पता है ना लास्ट लेक्चर में मुझे आपको एक्सप्लेन कुछ नहीं किया था. मैंने सिर्फ आपको कहा था ये ले लो एंड यू जस्ट कंटिन्यू. नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन यू दैट ये इंसर्ट क्वेरी कैसे किया जाता है. इंसर्ट इनटू टेबल नेम, you write it values and you specify value 1, value 2, value 3 and so on so forth. आपकी जितने भी वैल्यूज है you please insert. Remember the basic rule to remember that strings and date times date time must be enclosed in single quotes, must be enclosed in a single quotes. Other values, other values विदाउट सिंगल कोट्स. शायद आप लोगों ने कल नोट किया था, जब हम लोगों ने नेम एंटर किया था, नेम को हम लोगों ने कोट में डाल दिया था. हाउएवर हम लोगों ने जो मार्क्स और आईडी एंटर किया था उसको हम लोगों ने कोट में नहीं डाला था. सो इट्स लाइक अ सिंपल ऑब्जर्वेशन. सो दिस इज समथिंग, फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. सेकेंड थिंग, वैल्यूज का ऑर्डर मस्ट बी सेम एज ऑफ कॉलम ऑर्डर while creating a table. जब हमने टेबल बनाया था तब आपने जो ऑर्डर दिया था उस ऑर्डर में ही अपने वैल्यूज देने चाहिए. दिस इज अगेन मैंडेटरी. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? Let me explain you. You go ahead, say insert into students. कल हमने टेबल बनाया था, we said values. Let me try to insert some record over there. ये 5 रिकॉर्ड ऑलरेडी कल इंसर्ट किए थे. I'm trying to insert a next record. Let's say that we have someone over here, let's say Yogesh. So I can insert, let's say Yogesh, and I'm just giving some sort of a marks. And you find that ये जो पहला आईडी है, अगला नेम है, अगले मार्क्स है. This is absolutely correct way, and this is how it is going to work. There is no trouble. However, what if I change the order? If you change the order, now there might be trouble. There will be trouble rather. So suppose that if I'm doing something like this, I took, let's say, 90 before this. I'm saying that मेरे को पहले मार्क्स एंटर करने हैं, बाद में ये एंटर करना है, और बाद में मुझको लेट्स से दिस विल पर्सन आई वांट टू एंटर. करेक्ट? तो सो विल इट वर्क? नो, दिस विल गिव मी एरर. And what is the error? It is saying that data is truncated for the column marks or something like that. So it is saying that I'm not able to get what exactly you are doing. Except वर्षा, बाकी सबको ये एरर आने वाला है. वर्षा वापस से एक बार, वो स्ट्रिक्ट मोड का प्रॉब्लम है. So I'm saying that this is giving me error. लेकिन सर अगर मेरा मन कर रहा है कि मुझको किसी भी ऑर्डर में डेटा एंटर करना है तो मैं क्या करूं? अच्छा, आपको मन कर रहा है वो किसी भी ऑर्डर में डेटा एंटर करना है, then why don't you tell it कि आप कौन से ऑर्डर में डेटा एंटर कर रहे हो. यू टेल हिम मैं मार्क्स पहले दे रहा हूँ, आफ्टर मार्क्स मैं नेम दे रहा हूँ. करेक्ट? नहीं, सॉरी, नेम नहीं दे रहा हूँ, आईडी दे रहा हूँ, और उसके बाद में मैं नेम दे रहा हूँ. इफ यू टेल इट लाइक दिस, नाउ देयर इज नो ट्रबल एंड योर डेटा is inserted correctly. You can check the data, select star from students, and you can ensure that Yogesh, Digvijay, both are in place. There is absolutely no trouble. And wait, it is not over. Why don't I go one more step ahead? So what if I want to insert only, let's say, name? Listen, I want to insert only, let's say, name, and I want to insert only the ID. I don't want to insert name, marks. Q.
सर इन लोगों का अभी तक एग्जाम हुआ ही नहीं है, एग्जाम हुआ नहीं है, मार्क्स कैसे दूंगा? तो सर जीरो दे दो, ये जीरो मार्क्स होते हैं, यू नो, इफ द स्टूडेंट हैज नॉट परफॉर्म इन एग्जाम तो जीरो दे सकते हैं, सो जीरो कैन बी अ वैलिड मार्क्स, सो आई डोंट वांट टू गिव इट जीरो, आई वांट टू टेल दैट कि इन लोगों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, इनको मार्क्स नहीं देने, एंड दैट इज द रीजन database has got some concept called as a null values. Yes, na value, not applicable values, उसको हम लोग कहते हैं null values. तो ये null values हम लोग कैसे enter कर सकते हैं? I'm saying that you can go ahead, you can specify id, you can specify name, and you can specify, let's say, Pooja over there. If I have done that, now what will happen? I'm just giving the id, I'm just giving id, and I'm just giving a name. So id and name I have given. अब मैंने मार्क्स नहीं दिए, क्यों? अभी मैंने मार्क्स नहीं दिए, तो सर अब एट दिस मोमेंट उसके मार्क्स क्या होंगे? एट दिस मोमेंट उसके मार्क्स होंगे नल। आई रिपीट, नल इज नॉट जीरो, नल इज इंडिकेटिंग दैट अभी तक इसका एग्जाम नहीं हुआ है, अभी तक इसके मार्क्स नहीं आए, जब कभी एग्जाम होगा तब हम इसको वापस से मार्क्स दे देंगे। एट दिस मोमेंट these marks are not applicable, at this moment these marks are not applicable. If you want, if you want, you can go ahead and you can think of entering the multiple records as well. So how I can enter the multiple records as well? Let's say that, let's say 9, let's say it's like a Samir, another one I have got, no, अगर आपने मार्क्स वर्ड लिखा है तो आप लोग ब्लैंक नहीं दे सकते हो, आपको कुछ ना कुछ तो वैल्यू देना पड़ेगा। आप लोग मार्क्स वर्ड लिखोगे तो उसको ब्लैंक नहीं कर सकते हो, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, आपको वैल्यू देना पड़ेगा। सो 3 कॉलम दिए तो 3 वैल्यूज भी देने पड़ेंगे। हेयर आई कैन इंसर्ट मल्टीपल रिकॉर्ड्स, ये शायद मैंने आपको कल भी बताया था, तो आप लोग मल्टीपल वैल्यूज सिंटैक्टिकली इस तरह से इंसर्ट कर सकते हो। वैसे आप लोग चाहो तो मैन्युअली भी नल इंटर कर सकते हो, अब ऐसा कोई करता नहीं हो बात अलग है, बट स्टिल इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन, आप लोग मैन्युअली, लेट्स से आईडी, नेम, मार्क्स, आप लोग चाहो तो मैन्युअली भी नल इंसर्ट कर सकते हो। लेट्स से समझ 12, आई सेड नल, नल, नल इज अ कीवर्ड फॉर आरडीबीएमएस, नल इज अ कीवर्ड फॉर आरडीबीएमएस, आप लोग मैन्युअली भी उसको इंसर्ट कर सकते हो। दिस इज एब्सोल्युटली वैलिड, एब्सोल्युटली वैलिड। व्हाई डोंट यू से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड यू गेट all the data, right? I guess you people can try it quickly. Please try this quickly and check whether you are able to see the null values or not. जब हम लोग ग्रुप बाय फंक्शंस पढ़ेंगे तो हम लोग नल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम लोग ग्रुप बाय फंक्शंस पढ़ेंगे तो हम लोग ग्रुप बाय के वक्त देखेंगे नल क्या होता है, नल फंक्शंस क्या होते हैं, फिर उसके नल के किस तरह से नल को हैंडल किया जाता है, नल को किस तरह से कंपेयर किया जाता है, नल के और कुछ स्पेशल इज नल, इज नॉट नल करके अलग से ऑपरेटर होते हैं। देयर इज लॉट मोर थिंग्स टू डिस्कस। अभी के लिए सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि नल का मतलब ये है दैट इट इज वैल्यू इज करंटली एब्सेंट, a value is currently absent, that is the meaning of the null at this moment. तो सर इंसर्ट खत्म हो गया है क्या? नहीं, खत्म नहीं हुआ है। वन लास्ट थिंग अबाउट द इंसर्ट दैट आई वांट टू टेल यू, last thing that I want to tell you about the insert, last thing I want to tell you about the insert is that you can think of insert the record, we can insert records from one table into another table. This is also possible. How we can do that? Have a look at this. Insert into let's say new table name, and you can simply say select star from older table name. This is possible. आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग क्या कर रहे हो? इस टेबल में से उस टेबल में पूरे के पूरे रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो। This is absolutely possible. But in this case, the order of the count and order of tables, order of columns in new table must be same as older table. So please understand that. So this will happen. Take care of it. It should be exactly same. Structurally data type wise, data type should be compatible. मतलब एक क्या है, एक var क्या है, that works, but structure उसका similar होना चाहिए। सर अगर similar नहीं होगा तो
सिमिलर नहीं होगा तो आप लोगों को शायद वापस से कॉलम के नाम देने पड़ेंगे, C1 C2, और आपको इसके भी कॉलम के नाम देने पड़ेंगे, समवेयर यू कैन से C1 C2। सो यहाँ पर आप उसको क्या बता रहे हो, इन दिस केस column C1 and C2 data from old table will be inserted into C1 and C2 columns. C2 columns of new table. Correct? This can also be done. चलो हम लोग क्विकली इसको चेक करके देखते हैं, और बाद में हम लोग रुकते हैं. How we can do that? We can have create table. I can say new students. In new students, I'm saying roll number. नाम सेम होना मैंडेटरी नहीं है, जानबूझ के नाम मैं अलग दे रहा हूँ. And name, yes, I'm saying that it is cat 20. I have given. And now what I'm saying is that insert into new students. अब number of rows, columns यहाँ के और वहां के सेम नहीं है. Amit, please go ahead, give the query. You will understand it better. Right? करके देखो. That is the reason. See, बहुत सारी चीजें आपको सुन के कभी नहीं समझ में आने वाली है. Database is all about practical module. Let us first give the query, play with the query. You should understand it. Still not understood? Please ask. You're welcome. New student, I'm saying that we have got roll number and name, and I want to say select a, पिछले वाले इसमें क्या था, ID था, name था, from students. What this is doing, please take a look at this. वो इस टेबल का पूरा रिकॉर्ड इस टेबल में इंसर्ट कर रहा है. ये पहले टेबल क्रिएट करो और उसके बाद में जाके इंसर्ट करो, प्रेस कंट्रोल C. Someone is there. Done. And after you have done that, please go ahead and say select star from new students. As you say select star from new student, you find that all the records are inserted, only roll number and name. तो सर क्या हुआ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डोंट वरी. मैंने क्या बताया आपको, व्हाट इज हैपनिंग. मैंने एक नया टेबल बनाया, न्यू स्टूडेंट. जो आपका ओल्ड टेबल था, स्टूडेंट्स टेबल जो था, उसके अंदर 3 कॉलम थे. एक कॉलम था आईडी, आपको याद होगा. दूसरा कॉलम था नेम, और तीसरा कॉलम था आईडी नेम एंड यस मार्क्स. सो थर्ड कॉलम वाज मार्क्स. अब मैंने क्या कहा कि मुझको ऐसा टेबल बनाना है जिसके नंबर ऑफ कॉलम्स इस कॉलम से सेम नहीं है. अगर सेम नहीं है, व्हाट इज टू बी डन, टेक अ लुक एट दिस. अगर मैं ऐसा लिखता हूं, न्यू स्टूडेंट्स 2 कॉलम दे दिए और यहाँ के भी मैंने 2 कॉलम ले लिए, व्हाट विल हैपन, द डेटा फ्रॉम दिस कॉलम will be coming into this column, right? And data from this column, second column, will come into this column, right? And you will be able to see all the data available there. Correct? This is something I'm trying to explain you. Amit, I hope now you can read this particular line clearly once again and see the output, and then you can understand it better. See, जब तक आप लोग करके नहीं देखोगे समझ में नहीं आने वाला. Please understand that. So you first listen what is happening, you do the things on your own, and once you are done the thing, still it is not clear, please ask once again, and still it is not clear, do the assignment, ask on next lecture once again. That is something that we can do. Good. So a lot of people have done that. That is fantastic. Okay. It's good. I hope it is very simple, and now you can understand it better. How to delete duplicate entry? इसके लिए टाइम है. डिलीट नाम का क्वेरी होता है, अगर जल्दी होगा तो गूगल सर्च करके ढूंढ लो.
डिलीट हम लोग टुमारो, डे आफ्टर टुमारो के सेशन में हम लोग अपडेट और डिलीट पढ़ेंगे, क्योंकि तब तक मैं आपको नहीं पढ़ा सकता हूँ, लिसन केयरफुली, तब तक मैं आपको नहीं पढ़ा सकता हूँ जब तक मैंने आपको वेयर क्लॉज नहीं पढ़ाया। तो पहले मुझको सिलेक्ट पढ़ाने दो, वेयर क्लॉज पढ़ाने दो, दैट इज फॉर टुमारो सेशन, और उसके अगले सेशन में हम लोग अपडेट डिलीट पढ़ेंगे। समथिंग सिमिलर चैतन्य, सेम इज फॉर यू एज वेल। स्पेसिफिक रो के लिए आपको पहले वेयर क्लॉज आना चाहिए। सो वेयर क्लॉज हम लोग अगले लेक्चर्स में करेंगे, उसके बाद में इसको आप लोग अप्लाई कर लो। ओके, दैट इज ऑल, इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। कहाँ पर था मैं? ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, एंड दिस इज समथिंग आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, डीएमएल क्या होता है। आपको आज एक असाइनमेंट आएगा, एंड दैट असाइनमेंट इज लाइक मोर ऑफ डेटा एंट्री असाइनमेंट, सो दैट आपको थोड़ा सा इंसर्ट का प्रैक्टिस हो जाए, इसके लिए वो असाइनमेंट दिया हुआ है। कुछ आपको बेसिक सिक्वल के रूल समझ में आ जाए, यू नो बैककॉट कब देना है, बैककॉट नहीं देना चाहिए, दिस काइंड ऑफ फ्यू रूल्स आर देयर। इंश्योर दैट यू कंप्लीट दैट असाइनमेंट इनटू द टुमारोज लैब टाइम before you come down to the lecture, and for God's sake कल के lecture में ensure that your installations are ready before you start with the lecture. So जब 6 o'clock lecture चालू होगा, आपको MySQL आपका ready के condition में होना चाहिए, working condition में होना चाहिए। कुछ errors है, please get it sort out during lab time, उसके लिए lab है, right? ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। We will stop over here. Tomorrow, कल से हम लोग कुछ अच्छा, यू नो, इंटरेस्टिंग काम करेंगे डेफिनेटली। डिड यू इंस्टॉल एनी एक्सटेंशन फॉर सिक्वल इन VS कोड? आई गेस मैंने यस, शाम शायद मैंने सिक्वल सर्वर का कोई तो एक्सटेंशन ऐड किया है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो अब हम लोग लिखते हैं, प्लीज टेक द डाउट्स एट द एंड ऑफ द सेशन। रूपाली, आई वुड लव टू टेक, बट टुडे आई एम सपोज टू गो टू द डॉक्टर, but usually I used to wait for your doubts. So my doctor appointment is at 8 o'clock, right? Chalo, bye bye for today.